Jai Hind children, this video is for grade 3. You can refer to your English book Marigold. We are going to read this story today and I'll make you understand that. You can open page number 38. Marigold, page number 38. The title of the story is A Little Fish Story. A Little Fish Story. That's the title of the story. You can repeat the lines after me so that it helps you to pronounce the words properly, and it also helps you to take proper pauses. It is very important that when you read the text with proper pauses. Okay, so repeat after me. When I am reading, you can pause and then you can repeat after that. There are a great many million fish in the seas. But this story is about just one of them, and a very small one at that. Now this little fish had everything in the seas to make him contented, but he was not happy. You will laugh when I tell you why he was not. He was unhappy because he was so very small. It is very hard to be such a little mite of a fish, he would say, over and over again. If I were only larger, how much happier I could be. And he said it so many times that I think he believed it. One day he was swimming along with the rest of his school and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for than he, when suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight. And just as its hull was being emptied into the boat, the smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool, clear water. How good it felt! He swam here and there and everywhere, and some of the fish who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. The story is written by Enos B. Comstock. That's the name of the writer, Enos B. Comstock. Now we will understand the story and we'll also underline the difficult words. So mark the pronunciation also. There are a great many million fish in the seas. So million, you can understand this word. Million means 10 lakhs, means a lot. A great many million. So it's not only 10 lakhs, many million fish in the seas. बहुत सारे fish होते हैं seas में, समुद्र में. So we're talking about a lot of fishes in the sea. But this story is about just one of them. So ये जो story है, ये किसी एक fish की है. कोई एक fish जो बहुत छोटी सी है ना? Just one of them and a very small one at that. और जो बहुत छोटी सी fish है, उसकी story है ये. तो out of those 10 million, many million fishes in the sea, this story, ये story जो है, वो एक छोटी सी fish के बारे में है. Now this little fish had everything in the seas to make him contented. We underline the word everything. Everything means to have everything, सब कुछ. Anything मतलब कुछ कुछ कुछ. Something का मतलब क्या होता है कुछ कुछ. Everything मतलब सब कुछ. तो उस fish के पास सब कुछ था. To make him contented. Contented मतलब satisfied. जो 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 requirements होती हैं एक fish की,
है ना, फिश पानी में रहती है, इधर से उधर घूमती है, कुछ कोई कुछ नहीं कहता। सो कंटेंटेड मीन्स सेटिस्फाइड। तो उसके पास सब कुछ था सी समुद्र में रहने के लिए, खाने पीने के लिए, बट फिर भी वो हैप्पी नहीं था। वो फिश, अब यहाँ पे फिश के लिए जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो है ही, सो वी रेफर टू दैट फिश एज अ मैस्कुलिन। सो ही वॉज नॉट हैप्पी, फिश जो था वो हैप्पी नहीं था। यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वॉज नॉट। तो जो स्टोरी बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि और अगर मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों हैप्पी नहीं था तो आपको तो बहुत हंसी आने वाली है। यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वाज नॉट हैप्पी। ही वाज अनहैप्पी बिकॉज ही वाज सो वेरी स्मॉल। वो इसलिए अनहैप्पी था वो फिश बिकॉज वो बहुत ही छोटा था। It is very hard to be such a little mite of a fish. You can underline the word mite here, and it is very hard. He would say, वो हमेशा यही कहता रहता था कि इतना छोटा सा होना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल है. It is very hard to be such a small fish. Over and over again. Over and over again मतलब जब आप एक बात को बार बार बोलते हैं, so over and over again. So बार बार वो एक ही बात बोलता रहता था कि इतना छोटा सा होना जो है वो बड़ा ही मुश्किल है. And he also said, if I were only larger, how much happier I could be. वो ये सोचता था अगर मैं भी खूब लार्ज होता, बहुत बड़ा होता, तो मैं भी कितना खुश रहता. And he said it so many times that I think he believed it. You can underline the word happier and you can underline the word believed. और वो ये चीज को बार बार ओवर एंड ओवर ही सेड, वो इतनी बार कहता था कि उसको लगता था कि बस खुशी जो है वो बड़े होने में ही है, छोटे होने में खुशी है ही नहीं. बिलीव्ड मतलब आप किसी चीज पे बहुत जब विश्वास करते हैं, बिलीव मतलब विश्वास करना. जब आप बार बार एक चीज के बारे में सोचते हैं कि अगर मेरे पास ये होता तो तभी मैं खुश हो सकता है, तो वो दुखी रहने लग गया था हमेशा. One day he was swimming along with the rest of his school and thinking. You can underline the word swimming and the word school. So school here is a collective noun used for fish. So बाकी जो fish थी, so all fish together, उनके साथ वो swimming कर रहा था. One day he was swimming along with the rest of his school and thinking, और साथ साथ में सोच रहा था. No doubt, underline the word doubt. इसमें B silent है आपका, so read it properly. Doubt. No doubt. इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल श्योर. नो डाउट मतलब एकदम श्योर होना किसी चीज के लिए. हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही. तो सोच रहा था कि कोई पक्का ही जो बड़े जो फिश है ना वो बहुत ही थैंकफुल होते होंगे बड़े होने के लिए, और मैं तो किसी चीज के लिए थैंकफुल हो ही नहीं सकता, ग्रेटफुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा सा हूँ. व्हेन suddenly you can underline with no warning also you can underline, they found themselves in the meshes of a great net. तभी अचानक से, suddenly with no warning मतलब एकदम अचानक से, पता नहीं कहाँ से अचानक से क्या हुआ. they found themselves in the meshes of a great net. अचानक से एक नेट आया और बहुत सारे फिश जो थे उसमें फंस गए. अब क्योंकि फिश जो है वो पानी के अंदर स्विम करते हैं, और ऊपर जो होगा कोई फिशरमैन बोट पे घूम रहा होगा, तो उन्होंने फिशरमैन क्या करते हैं, नेट डालते हैं, और नेट में जो है बहुत सारी फिश जो है पकड़ में आ गई उसे, और वो सारे जो थे उस नेट में फंस गई. There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight. अब आप देखो यहाँ पर ये बोट का कॉर्नर आपको दिख रहा है ना. तो ये बोट से फिशरमैन ने इतना बड़ा नेट डाला और इसमें ये सारी जो बड़ी बड़ी फिश थी वो सब फंस गई. एंड देयर वाज मच फ्लाउंडरिंग मतलब वो उछल रही है इधर उधर. स्प्लैश पानी भी इधर उधर उछाल रही है, वो उसमें छलक रहा है पानी, जैसे जैसे वो नेट को ऊपर खींचते जा रहा था. और जो फिश है वो बहुत मचल रही थी और वो नेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, और वो नेट से खींचते अब जो नेट था वो इट केम आउट ऑफ द वाटर, इट वाज ड्रॉन अप. उसको पुल कर लिया ना, सो ड्रॉन अप मींस इट वाज पुल्ड
out of the water into the sunlight. तो जैसे ही वो पानी से बाहर निकले तो सूरज की रोशनी में आ गए. And just as its hull was being emptied into the boat, अब जैसे ही वो फिशरमैन ने नेट खींचा होगा और वो नेट जो था वो खाली कर रहा था बोट में. द हॉल, HAUL इज हॉल, उसको खाली कर रहा था बोट में. द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल wriggled through the mesh. We'll underline the word wriggled and emptied. Emptied मतलब खाली करना. तो जो सबसे छोटी वाली फिश थी, जो सबसे छोटा वाला फिश था, जो हमेशा परेशान रहता था कि मैं छोटा क्यों हूँ, मैं छोटा क्यों हूँ, तो उसने क्या किया, उसने फटाफट से अपने को थोड़ा सा मूव किया, ट्विस्ट किया. रिगल्ड मीन थोड़ा सा ट्विस्ट करा उसने अपने आप को, और इट स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर. और वो बस अपना बॉडी को हिलाया डुलाया उसने थोड़ा सा, और पानी के अंदर वो वापस से उस नेट में से उसने जगह बना के वो स्लिप कर गया. और जैसे वो स्लिप करके कहाँ गिर गया, वापस से पानी में गिर गया. हाउ गुड इट फेल्ट. और जैसे वो पानी में गिरा तो उसने चैन की सांस ली. वाओ, बच गए, है ना. ही स्वैम हेयर एंड देयर. स्वैम, he swam here and there. तो अब वो कभी इधर घूम रहा था पानी में, कभी इधर घूम रहा था. and everywhere, और सब जगह घूम रहा था. क्यों? क्योंकि वो बहुत खुश था. he was very happy now. उसकी जान बच गई थी. and some of the fish who knew him well all the rest of his life said they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. और इसके बाद, इस दिन के बाद से उसको किसी ने ये कहते हुए नहीं सुना कि मैं छोटा क्यों हूं, है ना. ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, मतलब ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ का मतलब है कि सारी जिंदगी, उसके बाद जितना टाइम भी वो था, पूरी जिंदगी उसने नेवर सेड, दे नेवर अगेन हर्ड, किसी ने कभी भी उसको ये कहते हुए नहीं सुना कि मैं इतना छोटा क्यों हूं. कभी उसने कंप्लेन, कभी किसी ने उसको कंप्लेन करते हुए नहीं सुना, क्योंकि उसको छोटे होने का फायदा समझ में आ गया था. उसको ये समझ में आ गया था कि मैं जैसा हूँ मेरे लिए वैसा ही अच्छा है. अगर मैं भी बड़ा होता, अगर उस दिन वो फिश भी जो था वो छोटे के बजाय बड़ा होता, तो वो भी जो है फिशरमैन के नेट में आके फंस के मर जाता. पर क्योंकि वो छोटा सा था, इसलिए वो उसमें से ट्विस्ट होके रिगल करके नेट में से निकल गया और उसकी जान जो थी वो बच गई. So there's a very important moral of the story here is that we should be happy with what we have. We should not be complaining about things that we do not have. जो चीजें हमारे पास नहीं हैं, उसके लिए हमें complain नहीं करना चाहिए. We should have a satisfied life. हमें तसल्ली रखनी चाहिए कि हमारे को जो भगवान ने दिया है वो बहुत है, हमारे लिए वो बहुत है. हम अपने डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को हम बहुत ज्यादा बढ़ाते जाते हैं, है ना. और फिर हम कहते हैं अरे हमारे पास ये नहीं है, अभी हमारे पास ये नहीं है. हम हर टाइम कंप्लेन करते रहते हैं. बट हमको ऐसा नहीं करना चाहिए. हमको सेटिस्फाइड रहना चाहिए, हमको ग्रेटफुल होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए गॉड के लिए कि वो उन्होंने जो हमको दिया है वो हमारे लिए काफी है ना. तो ये मॉरल है आपका स्टोरी का. चाहे वो फिश छोटी सी थी, तो छोटी सी होने के लिए वो परेशान रहती थी, पर उसको समझ में आया एक दिन कि छोटे से होने का कितना फायदा है, और क्योंकि वो छोटा सा था इसीलिए उसकी जान बच पाई थी उसे. Isn't it? So I hope you enjoyed listening to the story and you've got the moral of the story also. So, and I'm sure you would never complain in your life ever again. Okay? So read the story and enjoy it. We'll see you in the next video. Take care. Goodbye.